Assalamu alaikum students, welcome to Mathematics Point. Here is Fatin Saadi and today we will discuss about the topic that is speed and practice now 11. So before moving directly towards practice now 7, we should know about what is the speed. So if we look at the perfectly definition that is given in your books, the speed of an object is defined as the distance traveled by the object per unit time. That means the total distance you covered in unit of time. We have a unit of time, minute, second, hour. So you can find your speed according to the distance rather you want to find the distance in kilometer, meter, or according to that your unit of time you want to find your speed regarding to your per hours, then per minute as well as per second. So we have the formula of speed. This is the speed is equal to distance travel, your total distance that is covered or that is traveled, and time taken and the specific time that is required to cover that distance. टोटल जो डिस्टेंस आपने कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है व्हेन यू डिवाइडेड बाय सो वी गेट दिस स्पीड. So we have the unit of the speed is meter per second, kilometer per hour, and meter per minute and centimeter per second. Here in the denominator is the time, and same is that in the units we have the time units in the denominator, and the numerator is the units of the distance, meter, kilometer, and centimeter, so on. So now we move towards the practice now 11. So in practice now 11, question number 1, we have a question. A train travels 16.8 kilometer in 25 minutes. Find the speed of the train in kilometer per hour and meter per second. So first of all you have to look out your data that you have. You have a distance in kilometer and time in minutes. ठीक है, आपके पास distance किलोमीटर में दिया गया है और जो time है वो किस में दिया हुआ है, minutes में दिया हुआ है. And we find out the speed. अब speed का formula हमारे पास given है, that is distance covered divided by time taken. आपको find out करना है first question में किलोमीटर पर आवर के 1 किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर या कितने किलोमीटर आप कवर कर सकते हैं. सो यू हैव टू first of all find out the part time. Okay, so here I just note down the data that is given in the question. Distance that is 16.8 kilometer and time in 25 minutes. So first of all, in all the questions you have to write down the formula. What is the formula? We have formulas. We want to find out the speed, and the formula is speed is equal to distance travel, distance cover, और rather you can just write down the distance. कुछ भी लिख सकते हैं आप, एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर लें. सारा फार्मूला बार बार रीराइट बेशक मत करें आप, ठीक है. अब देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट आई जो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, किलोमीटर पर आवर में हमने फाइंड आउट करनी है इसकी स्पीड, कि हमने स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में. अब आप सबसे पहले यूनिट्स को मैच करें. आपके पास डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है और हमने भी जो में आंसर चाहिए उसकी यूनिट किलोमीटर होनी चाहिए. सो दैट इज़ ओके, पहले से उसी यूनिट में गिवन दिया है. टाइम की यूनिट चेक करें. वी हैव अ गिवन टाइम इन 25 मिनट्स. रादर इन द आंसर वी हैव टू गिव आउट और आंसर इन द फॉर्म ऑफ आवर्स. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मिनट्स की फॉर्म में और हमें आंसर किस में देना, आवर्स की फॉर्म में देना है. सो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट और मिनट इनटू आवर्स. अब आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट आउट करके यहाँ पे ही कर लो, डायरेक्टली आवर्स में कन्वर्ट करो, या चाहें तो आप पहले टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर लें ताकि आपकी जो फ्रैक्शन है वो एक सिंप्लीफाइड सी फॉर्म में आ जाए. सो वी हैव अ टाइम इन 25 मिनट. ठीक है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस 25 मिनट्स इनटू आवर्स. अब 1 आवर के अंदर हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स. सो यू हैव टू डिवाइड दिस 25 बाय द 60 फॉर दैट पर्पज़ कि हमारे पास टाइम किस चीज़ में आ जाए, आवर्स में आ जाए. सो वी हैव टू डिवाइड 25 बाय 60 ताकि आपके पास जो आंसर है वो किस में आ जाए, आवर्स में आ जाए. वन थिंग मोर, आपको जब भी किसी स्मॉलर यूनिट को किसी ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, सो व्हाट इज़ नीड टू डू इन दैट केस, यू हैव टू डिवाइड बाय द टाइम. और अगर यही मेरे पास आवर्स में होता और मुझे मिनट्स स्मॉलर यूनिट है ना उसमें कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या कर देती, मल्टीप्लाई. अब देखिए टाइम था मेरे पास 25 मिनट्स. आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस 25 मिनट्स इनटू आवर्स, सो आई डिवाइडेड बाय द 60. वाई सो, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो हियर वी डू द डिवीजन. आप चाहो तो मैन्युअली कर लो, चाहो तो कैलकुलेटर यूज़ कर लो. आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर. ओके जी, 25 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 5/12. मेरे पास 5/12 आवर्स आंसर आ गया. नाउ वी हैव टू पुट आउट द टर्म्स इन द फॉर्मूला.
speed, I just denoted speed by s is equal to distance divided by time taken, so I denoted by the t. So what is the distance that we have? Distance is 16.8 kilometer and the time is 5/12 आवर. ओके, अब फ्रैक्शन के नीचे कभी भी सेकंड फ्रैक्शन नहीं आती है. हमारे पास मैथ्स का रूल है, तो मैंने ब्रैकेट यूज़ की कि अगर आप इसी तरह लिखेंगे 16.8 फिर 5 है फिर 12 है, कुछ समझ नहीं आएगी कि ये टर्म कौन सी थी, इनका पेयर था या इसका पेयर था. सो यू हैव टू यूज़ द ब्रैकेट, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया. द मोस्ट लोअर टर्म दैट इज़ द डिनोमिनेटर, वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाता है आपके न्यूमिनेटर से. और दूसरी आप लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि आपकी टर्म रेसिप्रोकल बन जाएगी. आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. सो 16.8, 12 जो सबसे लोएस्ट मेरा डिनोमिनेटर है वो मेरे पास न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 5. ओके जी, नाउ डू द मल्टीप्लिकेशन. 16.8 मल्टीप्लाई बाय 12. Okay, so we have 201.6 divided by 5 and the answer is 40.32 किलोमीटर पर आवर. ये यूनिट आपने ज़रूर मेंशन करनी है क्योंकि इसी के लिए हमने सारे क्वेश्चन को चेंज किया था, जो कि हमारे पास किलोमीटर मिनट के हिसाब से था, हमने इसको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया. नाउ द स्टूडेंट्स दैट हैव द प्रॉब्लम, ओके आप इसको मैनुअली करके दिखाएं. ये तो मैंने सारे कैलकुलेटर से सिंप्लीफिकेशन की क्योंकि उससे टाइम सेविंग है, लेकिन अगर आपको मैनुअली चेक करना है सो यहाँ पे जो डायरेक्ट स्टेप किया था 25 डिवाइडेड बाई 60, 5 5 से 25, 5 1 से 5 एंड 0 कैरी 5 2 से 10, सो 5/12 यहाँ पे आपके पास होगी इस कैलकुलेशन. फिर आपके पास 16.8 मल्टीप्लाई बाय 12, सो 16.8 मल्टीप्लाई बाय 12. मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैनुअल करके दिखा रही हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, उससे यूज़ टू नहीं है, तो मैनुअली करना चाहते हैं तो उनको क्लियर हो जाए. 8 2 16, 2 6 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3. नाउ 1 8 8, 1 6 6, 1 1 1 6, 11 7 8 9 10 0 1 कैरी एंड 2. सो वी हैव टू पुट आउट द पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट. आप देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1. तो राइट साइड से काउंट करें, राइट साइड है मेरी, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, जो कि आपके पास ये आई है हमारे पास टर्म. अब हमने डिवाइड करना है, सो वी हैव अ 201.6. हम इसको ओके जी, 540 सर 200 सब्ट्रैक्ट करिए 1, आपके पास आएगा माइनस करके. फिर नेक्स्ट टर्म जब हम नीचे कॉपी कर रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट पहले से जो हमारे पास क्वेश्चन में मूव कर जाएगा एंड देन यू हैव टू राइट डाउन 6. ओके जी, 5 3 सर 15 -1. पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है, तो पॉइंट जब हमारे पास पॉइंट हम जितने चाहें 0 ले सकते हैं. 5 2 सर 10, जो कि कम्प्लीटली आपके पास डिवाइड हो रहा है. सो ये आपके पास आंसर है 40.30, जो कि आपके पास यहाँ पे मेंशन है. इस तरह आप मैनुअली चाहें तो मैनुअली कर लें और आप कैलकुलेटर से चाहें तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं. Okay, see now the second part of question 1, we have to find out we have the same data that we have in the part I, but here we have to give our answer in meter per second. In the last question we have to give our answer in kilometer per hour, but in this case we have to give our answer meter per second. By using the same data, distance is given 16.8 kilometer. Okay, so we have a time is in 25 minutes. Okay, whenever you have to note down your data that is given in the question, first of all you have to look out the requirement, what they required from us. ठीक है, सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट चेक करें. हमारे पास अब डिस्टेंस है किलोमीटर में, जो कि एक ही दफ़ा उन्होंने डाटा दिया था और हमने बहुत पार्ट्स में यूज़ करना था, और टाइम हमारे पास किस में, मिनट्स में. हमने आंसर जो देना है वो डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में, यानी कि मुझे डिस्टेंस वाली यूनिट को भी कन्वर्ट करना है, और जो टाइम है वो मेरे पास सेकंड्स में मुझे आंसर देना है सेकंड के हिसाब से. तो ये मेरे पास मिनट के हिसाब से मुझे इन दोनों यूनिट को कन्वर्ट करना है. ठीक है, दोनों अपने से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट हो रही हैं. किलोमीटर ग्रेटर यूनिट होती है, बिगर यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट है एज़ कम्पेरिजन टू मीटर. सेम इज़ दैट मिनट इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेरिजन टू द सेकेंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके जी, हमारे पास डिस्टेंस को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं. डिस्टेंस गिवन है 16.8 किलोमीटर.
अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में आपके पास कितने किलोमीटर होते हैं. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. Okay, so now we have to convert our 16.8 kilometers into meters. So we have to multiply it by the 1000. Okay, 16.8 multiplied by 1000 is equal to 16800 meters. Now we have to convert our time into meters. Now it's time to convert our time that is given in 25 minutes in minutes, and we have to convert this time into second. So as we know that we have 1 minute is equal to 60 second. 1 minute में हमारे पास कितने seconds होते हैं? 60. So first of all we have to convert our time that is given in the minutes into seconds. So we have to multiply by the 60. So by multiplying with the 60, we convert our time into seconds. So 25 multiplied by 60, and this is equal to 1500. Now both the distance and time are come in the required units, that is the minute and second. So now we again rewrite the formula and put our values in the formula. So distance is equal to time, speed is equal to distance travel. So first of all you have to write down the distance, that is 16800 meter divided by total time taken, and the time is given in 1500. So now do the simplification. We have to cut out both the zeros, and 168 divided by 15 meter per second. So we have to divide it. 168 divided by 15, and this is equal to 11.2. So we have a speed 11.2 meter per second. So this is the answer, required answer in meter per second. You have to take care one thing, and the thing is that whenever you give your answer, so your answer is according to the required units that is given, and that is demanded from you in the question. So it is done from your question 1. Now move towards the question number 2. Okay, so in question number 2, we have a situation, a word problem. So we have to read out the problem. A car travels at a speed of 55 km per hour. Find the distance traveled by the car in 12 minutes 30 seconds, giving your answer in minutes. Okay, so things that is need to be noted here. First of all, the time or the data given and the speed given is kilometer per hour, and we have to find out your answer in meters. And the time that is given, again it is a data 12 minutes 30 seconds. Okay, we have to find out कि 12 minutes 30 seconds में कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा. हमने आंसर मीटर्स में देना है. अगर हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कार ने कवर किया है दैट इज़ किलोमीटर पर आवर. यहाँ से आपके पास आपको सबसे पहले एक चीज़ कन्वर्ट करनी है. जो गिवन में आपके पास टाइम है उसी की यूनिट सेम नहीं है. हमारे पास 12 मिनट्स 30 सेकेंड्स हैं. तो इसमें सबसे पहले आप अपने कन्वर्ट करेंगे टाइम को स्मॉलर यूनिट में, ताकि आप इसको एडअप कर सकें. कितने सेकंड्स आपके पास टोटल टाइम कितना था, कितने सेकंड्स कार ने ट्रैवल किया. जब टाइम की यूनिट हमारे पास कॉमन आ जाएगी, सो बाय यूजिंग दिस यूनिट वी कैन फाइंड आउट कि ओके ठीक है इस टाइम पे उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया. And at the end we have to give our answer in the meters. So firstly we have to convert the units. ओके जी, हमने स्पीड कितनी गिवन थी 55 किलोमीटर पर आवर्स, और हमने आंसर फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द मीटर्स कि मीटर्स में उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया. एक तो हमें चीज़ स्पीड गिवन थी, दूसरी हमारे पास टाइम गिवन है कि आपके पास कितने मिनट ट्रैवल हुआ, दैट इज़ 12 मिनट्स. कितने टाइम टोटल जो ट्रैवलिंग का टाइम था उस कार का कितना, जो हमने फाइंड आउट करना है 12 मिनट्स 30 सेकेंड्स. ठीक है, आपके पास जो टाइम गिवन है दैट इज़ 12 मिनट्स 30 सेकेंड्स. सबसे पहले जो स्पीड है, स्पीड के लिहाज से हम लेंगे कि 1 मिनट में आपके पास कितनी स्पीड कवर थी, या आपके पास कितनी स्पीड थी 1 मिनट के हिसाब से. हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इसकी स्मॉलर यूनिट्स में. 55 किलोमीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं मीटर को, क्योंकि हमने वैसे भी आंसर हमें मीटर्स में ही चाहिए. सो यू हैव टू कन्वर्ट योर स्पीड अकॉर्डिंग टू दैट. 55 किलोमीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1000 बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट और किलोमीटर इनटू मीटर्स. एंड H represent hours, so 1 hour is equal to 3600 seconds. अब इसको सॉल्व आउट करके हमारे पास जो स्पीड होगी वो स्पीड हमारे पास किस में आ जाएगी, आपके पास मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग आ जाएगी. सो 550
divided by 36, and we have our speed that is 15.277, so on continues, so you can round off your term that is 15.278, और आप चाहो तो आप इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो. सो हमारे पास स्पीड अब किस में हमने कन्वर्ट कर ली, मीटर पर सेकंड में, यानी कि हमारे पास कितनी स्पीड आ रही है 15.278 आ रही है पर मिनट के हिसाब से, पर सेकंड के हिसाब से. टोटल कितने हमारे पास जो टाइम था गिवन है 12 मिनट्स 30 सेकंड्स. हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में कि टोटल सेकंड्स हमारे पास कितने बनते हैं. 12 मिनट्स को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे सो यू हैव टू मल्टीप्लाई योर 12 बाय द विद 60, कि एक मिनट में हमारे पास कितने सेकेंड्स होते हैं 60 प्लस दिस 30 सेकेंड्स की यूनिट सेम हो जाएंगी तो ये टाइम ऐड हो सकता है आपके पास. ओके जी, दिस इज इक्वल टू 720 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स. सो टोटल जो हमने फाइंड आउट करना है कितने टाइम का डाटा, दैट इज़ 750 सेकेंड, यानी कि हमने 750 सेकेंड के हिसाब से फाइंड आउट करनी है कि अब कितना डिस्टेंस कवर हुआ मीटर्स में. अब अगर हमारे पास कार की कितनी स्पीड थी, कार की स्पीड हमारे पास 15.278 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर हम अपनी कार की स्पीड को देखें तो टोटल इतने सेकंड्स हमारी कार ने डिस्टेंस कवर किया, इतना टाइम उसने लिया उस डिस्टेंस को कवर करते हुए, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा. हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने स्पीड को, हमारे पास स्पीड है जो हमने फाइंड आउट किया है 15.278 मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम हमारी कार ने ट्रैवल किया. ठीक है, ये वो टाइम है जो कि हमारी कार ने ट्रैवल किया, और ये स्पीड है कि कार की उस टाइम कितनी स्पीड थी. स्पीड पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर सको. स्पीड फास्ट होगी तो ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम पे कवर हो जाएगा, अगर आपके पास स्पीड स्लो होगी तो आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस कम से कम कवर होगा. तो आपके पास स्पीड आपके व्हीकल के ऊपर डिपेंड करती है. तो यहाँ पे हमारे पास कार की स्पीड कितनी आ गई जो कि किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी, हमने इसको मीटर पर सेकंड के हिसाब से आंसर निकाल लिया कि मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसके पास इतनी स्पीड बन रही थी. अब उसके बाद हमने सेकंड्स में अपने टाइम को कन्वर्ट किया. नाउ डू द मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड द आंसर कि हमारे पास उस कार ने डिस्टेंस एक्चुअल में कवर कितना किया. एंड दिस इज इक्वल टू 11,000.6 मीटर. टोटल ये डिस्टेंस है जो कि हमारे पास कवर हुआ इन फॉर्म ऑफ मीटर्स टाइम में. अब आपके पास जो आंसर है बैक साइड में वो मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप मिक्स्ड फॉर्म में कर लें. मिक्स्ड फॉर्म में अगर आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है, यहाँ से आप कैलकुलेटर को यूज़ के बगैर मिक्स्ड फॉर्म में आंसर फाइंड आउट करें, इसकी कैलकुलेशन करें, फिर आपके पास जो आंसर होगा वही 11 हो समथिंग करके कोई आंसर है तो आपके पास आंसर आ जाएगा. आप चाहो तो पॉइंट में आंसर दे दो, चाहो तो मिक्स्ड फॉर्म में दे दो, बोथ केसेस में आपके पास आंसर करेक्ट ही होगा. Okay, Ji, now the third part of practice now 11. A car and a bus are traveling towards each other. They are 5-10 kilometer apart at 13:20 and they pass each other at 16:20. If the car is traveling at a speed of 19 kilometer per hour, find the speed of the bus. Okay, Ji, this is type of scenario. Suppose we draw a line. Okay, this is the car and this is the bus. टोटल डिस्टेंस बिटवीन द बस एंड द कार, टोटल इनके दरमियान कितना डिस्टेंस आपके पास गिवन है, दिस इज़ दी 5-10 किलोमीटर. लेकिन ये 5-10 किलोमीटर कितने टाइम पे डिस्टेंस था, जब उनके पास टाइम था 13:20 तो उनके पास इतना डिस्टेंस था दोनों के दरमियान, यानी कि वो एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर थी, 5-10 किलोमीटर दूर थी जब 13:20 का टाइम था. उन बस और कार ने एक दूसरे को क्रॉस किया. ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस किया, वो जो क्रॉसिंग टाइम था दोनों का वो कौन सा टाइम हमारे पास गिवन है, दिस इज़ 16:20. फर्स्ट सिनेरियो दोनों एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, दैट इज़ 5-10, और उस टाइम टाइमिंग आपके पास क्या थी 13:12 पे वो दोनों एक दूसरे से 5-10 किलोमीटर दूर थी. फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, पास हुए, एक दूसरे के करीब से गुजरे, और उस टाइम आपके पास टाइम था 16:20. अगर हमारे पास जो कार है, कार की स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर. अगर कार इतनी किलोमीटर के हिसाब से, इतनी स्पीड के हिसाब से मूव करिए, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड है उसकी मूव करिए, तो बताएं बस की स्पीड कितनी है. अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम स्पीड से हो सकता है कार की स्पीड ज़्यादा है और बस की स्पीड कम है, कुछ भी आपके पास सिचुएशन होती है, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है. तो हमने फाइंड आउट करना है कि दोनों व्हीकल्स जो आपके पास है इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड किस व्हीकल की है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, तो हमने उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है बस की, कि बस की स्पीड कितनी थी इस सारी सिचुएशन में.
अच्छा, सारी सिचुएशन में हमें बस की स्पीड नहीं पता और वही चीज़ हमारे लिए अननोन है, हमने उसको फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें लेट कर लेते हैं बस की स्पीड. लेट द स्पीड ऑफ द बस इज़ एक्स. हमने बस की स्पीड को एक्स सेलेक्ट कर लिया है. आप कोई भी वेरिएबल ले लो, एक्स वाई जी ए बी सी, लेकिन यूनिट कौन सी आपने लिखनी है, जो कि कार की स्पीड थी. किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ज्यूम करना है कि कार के अगर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो बस की भी हमने उसी के अकॉर्डिंग बतानी है. ये तो हमारी लेट होगी स्पीड. अब हमने देखना है कि टोटल कितना कार ने डिस्टेंस कवर किया था. ठीक है, वो जो कार ने डिस्टेंस कवर किया था उसमें टोटल टाइम कितना, वो टोटल टाइम कितना था जिसमें इनकी दोनों व्हीकल ने एक दूसरे को क्रॉस अप किया था. आपके पास फर्स्ट जो टाइम था दैट इज़ 13:20. सेकेंड टाइम आपके पास कितना है, 16:20. 13:20 एंड 16:20, तो आप आवर्स काउंट कर लें कि आपके पास टोटल कितने आवर्स आपके पास नेक्स्ट स्पेंड हुए. दैट इज़ 3 आवर्स. 13 से आगे काउंट करें आपके पास 16 तक, 20 तो बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा. आपके पास कितना हो गया, 3 आवर्स आपके पास टोटल थे. 13, 14, 15, 16 आपके पास 3 आवर्स थे, जो कि आपके पास टोटल एक दूसरे को टाइम रिक्वायर्ड था दोनों व्हीकल्स को, जब उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया था. यानी कि वो टाइम जिसमें दोनों व्हीकल एक दूसरे के पास से गुजरी थी, क्रॉस ओवर हुआ था, तो उस टाइम आपके पास टोटल कितना टाइम लगा था उन दोनों को क्रॉस ओवर करने में, कितने टाइम बाद क्रॉस ओवर हुआ था उनका, दैट इज़ 3 आवर्स. नाउ टाइम हमारे पास आ गया कि 3 आवर्स के हिसाब से हमारे पास टोटल टाइम था. हमने देखना है कि अब कार की आपके पास कितना डिस्टेंस कवर किया था. ओके जी, अब हमने फाइंड आउट करना है कि 3 आवर्स में कार का हम कितना डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस दैट कार ट्रेवल्ड इन 3 आवर्स. ओके जी, पर आवर आपके पास जो गिवन डाटा था दैट इज़ 19 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पर आवर के हिसाब से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 90. ठीक है, और अगर 3 आवर्स होंगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यू हैव टू मल्टीप्लाई 90 वो डिस्टेंस है जो कि पर आवर में इसने कवर किया था. वी हैव टू फाइंड आउट बाय अकॉर्डिंग टू द 3 आवर्स, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 27 किलोमीटर. दैट इज़ 27 किलोमीटर 270 किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस दैट द कार कवर्ड इन 3 आवर्स. ये तो कार का आ गया कि उसने 3 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर किया. अब हमने फाइंड आउट करना है कि बस ने कितना किया. बस का तो हमें नहीं पता, बस की हमने स्पीड रिज्यूम कर ली थी x किलोमीटर पर आवर, तो उसके 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 3x. डिस्टेंस दैट बस कवर, सो उसका था x किलोमीटर पर आवर, और अगर 3 आवर्स को हम ज्यूम कर लें अकॉर्डिंग टू 3 आवर्स कितना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई योर x बाय 3. सो वी हैव 3x किलोमीटर. टोटल बस और ये जो कार का डिस्टेंस था, जितना भी इन्होंने डिस्टेंस कवर्ड किया, ये टोटल आपके पास कितना आना चाहिए था. टोटल जो डिस्टेंस था दैट इज़ 510 किलोमीटर. टोटल ये जो डिस्टेंस था ये 510 किलोमीटर था, जो कि आपके पास गिवन दिया, जिसमें से 270 आपके पास कार ने कवर कर लिया, और बाकी 3x ये जो डिस्टेंस था ये किसने कवर किया, बस ने. ये डिस्टेंस आपके पास कार का कवर्ड है, और ये आपके पास किसका, बस का. हमने फाइंड आउट करनी थी स्पीड ऑफ द बस, तो इससे हमारे पास स्पीड ऑफ द बस आ जाएगी. आप अननोन टर्म को अपने लेफ़्ट साइड में रखें, जो कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल के दूसरी तरफ मूव करवा दें. ओके जी, 510 माइनस 270, सो दिस इज इक्वल टू 240. We have to find out unknown variable, that is x. The coefficient 3, you have to divide this coefficient 3 on both sides, so our variable will be separated by this coefficient. That is 18 kilometer per hour. So this is the speed of the bus. The bus travel according to the speed of 80 kilometer per hour.